Hello my dear students, welcome to all in the social science class. Dear students, in previous module we have studied about the nature of non-cooperation movement, and we have also discussed that how do the people from different areas conceive the ideas of Gandhiji's Swaraj. We have also discussed that the non-cooperation movement become violent and Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement. So let's discuss the reasons for withdrawing of non-cooperation movement and beginning of civil disobedience movement. Dear students, as I have told you that non-cooperation movement become very violent. So Gandhiji decided to withdraw the movement in 1922. He felt a need to train satyagrahis properly before a mass struggle. Some leaders in Congress tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial council. Some of the leaders for that it would be better to oppose British within the councils. By remaining in council, they can force or pressurize the British government. So, C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party within the Congress and argued for a return to council. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were in favor of more radical and mass agitation. So बेटा फेब 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का डिसीजन लिया क्योंकि मूवमेंट वायलेंट होता जा रहा था. उन्हें लगा कि मास स्ट्रगल के लिए सत्याग्रहीस को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है. कांग्रेस के कुछ लीडर्स मास स्ट्रगल यानी जन संघर्षों से थक चुके थे और प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. उनको ये लगता था कि काउंसिल में रहते हुए ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाल सकते हैं, कुछ रिफॉर्म करवा सकते हैं, मीन्स कुछ सुधार करवा सकते हैं और ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध भी कर सकते हैं. काउंसिल के बाहर रहकर उन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी. सो कुछ कांग्रेस लीडर्स काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. इसीलिए C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई. जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंगर लीडर्स रेडिकल मूवमेंट्स और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की फेवर में थे और जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे. Dear students, in such a situation of internal debate and discussions, two factors again shaped the Indian politics late in 1920s. The first factor was the effect of worldwide economic depression. After First World War, due to economic depression, agricultural crisis began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand fell, export also declined. So, the peasants were not able to sell their crops. It becomes very much difficult for the farmers to pay the land revenue. So, there was a great turmoil in countryside. The students, इंटरनल डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद ऐसे दो फैक्टर्स थे जिन्होंने 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया. उनमें से फर्स्ट फैक्टर था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. बिकॉज 1926 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइस डिक्लाइन हो रहे थे और 1930 के बाद तो पूरी तरह से प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गए. सो एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो गई और एक्सपोर्ट भी कम होने लगा. तो फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू पे करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और 1930 तक रूरल एरियाज़ में काफ़ी उथल पुथल मच गई. सेकेंड फैक्टर वाज दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन set
statutory commission under Sir John Simon. The main objective of this commission was to look into the functioning of the constitutional system in India. But the main problem was that in this commission there was not even a single Indian member. So when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan Simon Go Back. So the students, ब्रिटेन की न्यू टोरी गवर्नमेंट यानी सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक लीगल कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देखना था और उसके बारे में सजेशंस देने थे। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तब सभी जगहों पर लोगों ने काले झंडे लहराए, ब्लैक फ्लैग से उनका स्वागत किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। डियर स्टूडेंट्स, इन इंडिया all major parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations. Knowing the trouble, the Viceroy Lord Irwin announced a vague offer of dominion status in October 1929 and a round table conference to discuss a future constitution, but the Congress leaders did not satisfy with Irwin proposals. Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. तो बेटा इंडिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सभी मेजर पार्टीज ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का अस्पष्ट सा यानी गोलमाल सा ऐलान कर दिया। ना ही कोई टाइम लिमिट बताई, सिर्फ इतना कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। हियर डोमिनियन स्टेटस मीन्स अ सेमी ऑटोनोमस कंट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सो इन प्रपोजल से कांग्रेस लीडर्स सेटिस्फाइड नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में रेडिकल्स और भी आक्रामक हो गए। हेंस द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन द कांग्रेस। In December 1929, the Congress session was organized at Lahore under the presidency of Jawaharlal Nehru and put the demand of Purna Swaraj or full independence of India. It was also decided that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when the people were to take a pledge to struggle for complete independence. Mahatma Gandhi was busy in finding a way to relate the abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. So बेटा दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस के लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई और यह भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अब फ्रीडम के इस आइडियाज़ को डेली लाइफ के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट गांधी जी वांटेड टू फाइंड अ वे टू द मोस्ट पावरफुल स्ट्रगल। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the whole nation. So on 31st January 1930, he wrote a letter to Viceroy Irwin mentioning 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes. But the most important demand was to abolish salt tax. Salt is a common item which is used by all the people in India. But during British period, tax was imposed on salt. People who consume salt, they have to pay salt tax. Government had monopoly over salt production.
imposition of tax on salt consumption, as Gandhiji declared, it was the most oppressive phase of the British rule. बेटा, कंट्री को यूनाइट करने के लिए गांधी जी को सॉल्ट ही एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया. सो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स मेंशन की. इनमें से कुछ जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिमांड्स थी और कुछ डिफरेंट क्लासेस की स्पेसिफिक डिमांड्स थी. इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास से लेकर पीजेंट्स क्लास की डिमांड्स इसमें इन्वॉल्व थी. गांधी जी इन डिमांड्स के थ्रू सोसाइटी की सभी क्लासेस को अपने साथ जोड़ना चाहते थे. इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना था, क्योंकि सॉल्ट रिच और पुअर सभी कंज्यूम करते थे. इसीलिए सॉल्ट पर टैक्स और प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट मोनोपोली को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फैक्टर बताया. गांधीजी's letter was not just a demand but a clear ultimatum as per the letter. If the demands were not fulfilled by 11th March, the Congress would launch a civil disobedience movement campaign. Irwin was not interested to talk about this. बेटा, महात्मा गांधी का ये लेटर एक क्लियर अल्टीमेटम था, यानी चेतावनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैंपेन स्टार्ट कर देगी. लेकिन इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इस बात को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च with his 78 volunteers. This historical march by Gandhiji is also known as Dandi March. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal of Dandi. The volunteers worked for 24 days, about miles a day. So बेटा, महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी. इस हिस्टोरिकल मार्च को बेटा डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है. ये यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक गुजराती कोस्टल एरिया तक खत्म होनी थी और गांधी जी के वॉलंटियर्स को 24 डेज तक डेली लगभग 10 माइल्स तक चलना था. So this movement attracted people in large numbers. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. This historical march was started from Sabarmati Ashram and reached Dandi on 6th April. Here Gandhiji violated salt law by manufacturing salt from sea water. बेटा, इस सॉल्ट मार्च ने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया. गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते. गांधी जी ने उन्हें स्वराज का मीनिंग क्लियर किया और कहा कि लोग पीसफुली ब्रिटिशर्स को डिसओबे करें, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने. सो बेटा, ये हिस्टोरिकल मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर 6 अप्रैल को डांडी पहुंची और वहां उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाना शुरू किया. डियर स्टूडेंट्स, दिस हिस्टोरिकल डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, people were asked not only to refuse cooperation with British but also to break colonial laws. Thousands of the people in different parts of the country broke the salt law and made salt. As the movement spread, people began to burn foreign clothes, liquid shops were picketed, and peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. In forest area,
The tribal community violated the forest laws and began to collect wood and graze animals or cattle. The British government, worried by the spread of civil disobedience movement, and began to arrest Congress leaders one by one. The students, जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का बाइकआउट किया, शराब की दुकानों के आगे धरने दिए गए, पीजेंट्स ने रेवेन्यू यानी भूमि का लगान और चौकीदारी टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा और फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन करने लगे। वुड कलेक्ट करने और अपने पशुओं को चराने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट में घुसने लगे। ऐसे इवेंट से वरिड होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, एज द कांग्रेस लीडर्स अरेस्टेड, इट लेड टू violent clashes in many places. When a devout or favorite disciple of Mahatma Gandhi, Abdul Ghaffar Khan, who was arrested in April 1930, the crowds became angry and demonstrated in the street of Peshawar. The British government ordered the police for firing. Many were killed after a month. Mahatma Gandhi was also arrested. Then, industrial workers in Sholapur were attacked. Police posts, municipal buildings, law court, and railway stations. All these were the symbol of British rule. The British government frightened badly and responded with brutal repression. Satyagrahis were attacked. Women and children were beaten and near about 1 lakh people were arrested. बेटा जैसे ही कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया, कई जगह पर तो वायलेंट क्लैशेस यानी हिंसक टकराव हुए। जब अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी के प्रति समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्से में आई भीड़ ने पेशावर की गलियों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन प्रदर्शनकारियों पर यानी डेमोन्स्ट्रेटर्स पर ओपन फायरिंग का ऑर्डर कर दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। आफ्टर 1 मंथ जब महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने ब्रिटिश सिंबल लाइक पुलिस पोस्ट यानी पुलिस चौकियों, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर अटैक करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एक्टिविटी से बुरी तरह डर गई और दमन का बड़ा ही निर्मम तरीका अपनाया। पीसफुल सत्याग्रहीस पर अटैक किए गए, वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया और अप्रोक्सीमेट 1 लाख पीपल अरेस्ट किए गए। Dear students, the movement became very violent as the British started the brutal repression. So, in such a situation, Gandhiji had to call off the movement and signed a pact with Irwin on 5th March 1931. This pact between Gandhiji and Irwin as Gandhi-Irwin Pact. As per the proposals of this act, Gandhiji agreed to participate in a round table conference in London and the British government agreed to release the all political prisoners and common people. बेटा जब ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल रिप्रेशन शुरू कर दिया, मीन्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को निर्ममता से कुचलना शुरू कर दिया, तो मूवमेंट और भी वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया। सो इस सिचुएशन में गांधी जी ने एक बार फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया और 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर साइन किए। गांधी जी और इरविन के बीच इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में गांधी जी ने लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एग्री हो गए। बिकॉज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। सो गांधी इरविन समझौते के थ्रू गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए और इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कॉमन पीपल को रिलीज करने पर राजी हो गई, मीन्स उनको रिहा करने के लिए मान गई। सो इन दिसंबर 1931 Gandhiji went London
to attend the conference, but the negotiations could not be successful and broke down. दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए, बट बातचीत बीच में ही टूट गई. गांधी जी disappointed and come back India. As he returned India, he saw that government had started a new cycle of repression. Political leaders were not released and Congress had been declared illegal, and severe restrictions were imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. Gandhiji, filled with grief, and relaunched the civil disobedience movement. This time, people do not actively participated, and by 1934, the civil disobedience movement lost its momentum. बेटा, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिसअपॉइंट होकर यानी निराश होकर इंडिया लौटे, और यहाँ आकर उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने फिर से दमन करना शुरू कर दिया है, यानी लोगों का रिप्रेशन फिर से शुरू कर दिया. पॉलिटिकल लीडर्स को भी रिलीज नहीं किया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया था. डेमोन्स्ट्रेशंस और बाइकआउट जैसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए. गांधी जी ने बड़े ही दुखी मन के साथ फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, लेकिन इस बार लोगों ने मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, और 1934 तक आते आते यह मूवमेंट स्लो हो गया. Dear students, today in this module we have discussed about the beginning of civil disobedience movement and reaction of the British government. Thank you. Stay blessed and stay happy. Have a fabulous day. Bye bye.